So now officially we are going to open our session. Now I hand over our today's MOC, Jayashree Ben. नमस्कार, आप सभी को मेरा तहे दिल से स्वागत है। आज की शाम एक सिर्फ कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की जागरूकता का एक सत्संग है। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी बड़े शुभ काम की शुरुआत अगर ओंकार के साथ की जाए तो वो पवित्र गुंज एक यादगार बन जाता है। हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, तो इसलिए हम सब मिलकर 3 बार ओंकार करेंगे। तो आप सब प्लीज आंखें बंद कर दीजिए, अपनी हथेली एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठिए, सीधे बैठिए। कोई भी सामान है नीचे रख दीजिए, साइड में रख दीजिए। मोबाइल फोन की अगर आप उसे साइलेंट या वाइब्रेट पे रख सके तो बहुत अच्छा है, बहुत मेहरबानी, पूरा कंसंट्रेशन होगा। और पूरे दोनों हाथ आप अपने थाइस पर रखिए और बॉडी को एकदम ऊपर की ओर रखिए, ऊपर की आसमान खोल के ऊपर की तरफ रखिए। रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को, महसूस कीजिए अब नेचर को। रिलैक्स। एक गहरी सांस लीजिए। धीरे से अभी आप अपनी आँख खोल के अपनी हथेली को रगड़ के अपने चेहरे पे लगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये माइक अभी मैं हैंड ओवर करना चाहूँगी मिस्टर मितेश जी को। मैं वेलकम करती हूँ मितेश भाई। गुड आफ्टरनून एंड जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। આજે આપણે અવેરનેસ સેશન ઓન યોગા, આયુર્વેદા, હોલિસ્ટિક હિલિંગ અને નેચરોપેથી પર આપણે આ પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે. ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી ફક્ત ટ્રેડ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના લાભાર્થે કામ કરે એવું નથી, પણ સામાજિક સુખાકારી માટે પણ આપણે કામ કરીએ છીએ. આપ સૌ જાણો છો કે આપણે દર રવિવારે એક હેલ્થ સિરીઝ પણ ચલાવીએ છીએ. આમાંથી ઘણા એવરી સન્ડે અહીંયા આવતા હોય છે ને એટેન્ડ કરે છે. આપણે લગભગ 30 પ્રોગ્રામ કન્ટિન્યુઅસ કર્યા. તે રીતે અમારી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની આ આયુષ કમિટી જે મનસાલી લીડ કરે છે, ડૉક્ટર નિપેશ પટેલ લીડ કરે છે, તે કમિટી દ્વારા પણ આ ત્રીજો કે ચોથો પ્રોગ્રામ આ ટેન્યુરમાં થઈ રહ્યો છે. હિન્દી में बोलना है? चलेगा? તો એક અગત્યનો વિષય કે જે હમણાં મનસાલી એવું તમને સમજાવી રહી હતી કે શરીર કેટલું અગત્યનું છે. આપણે દરેક જણ પૈસા કમાઈએ છીએ, સવારથી ઉઠીને દોડીએ છીએ, કોઈ નાનો મોટો ધંધો કરીએ કે કંઈ પણ કામ કરીએ, એની પાછળ કે ભાઈ આર્થિક ઉપાર્જન થવું જોઈએ, પણ એની સાથે સાથે શરીર પણ સ્વચ્છ અને નિર્મળ હોય તો આપણે જીવનમાં વધારે ટકી શકીએ. જો શરીરમાં જ કંઈક ઉણપ આવી જાય તો પછી પૈસા કમાવાનું કે આર્થિક ઉપાર્જન કરવાનો કોઈ માર્ગ આપણી પાસે રહેતો નથી. એટલે આપણે આજે આ એક અવેરનેસ સેશન રાખ્યું છે યોગા, આયુર્વેદા, હોલિસ્ટિક હિલિંગ પર, નેચરોપેથી પર. આવા 4 વિશાળ સબ્જેક્ટ પર આપણે આજે એક પ્રોગ્રામ રાખ્યો. આપણી સંસ્થા વિશે હું પહેલાં થોડુંક કહીશ કે જે 1940માં સ્થપાયેલી છે, આપને ખબર છે. આજે અમારા પ્રમુખ શ્રી નિખિલ મદ્રાસી હાજર નથી, દિલ્હી પાર્લામેન્ટ વિઝિટ પર છે, એટલે મને આજે વેલકમ એડ્રેસ કરવાની તક આપી છે. આપણી સાથે આજે આપણા વક્તા મેડમ આપણી સાથે કવિતા ગુપ્તા જે શાકુંત આશ્રમથી પધાર્યા છે. તો એમને તો પહેલાં હું
ભાવભીનું આમંત્રણ તો આપણું સ્વીકાર્યું છે, એમનું અભિવાદન કરું છું, એમને વેલકમ કરું છું. અને ડાયસ પર મનસાલી જે ચેરપર્સન ઓફ આયુષ કમિટી, વૈદરાજ ડૉક્ટર નિપેશ પટેલ જે કો ચેરમેન છે આયુષ કમિટીના, અને મારી સાથે આયુષ કમિટીના મેમ્બર જયશ્રીબેન પટેલ બેઠા છે, અને આપ સૌ લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન. આપણે દર વખતે કંઈક ને કંઈક નવું આ સમાજને અને ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના સભ્યોને આપવાની કોશિશ કરી. તેમાંનો એક અગત્યનો પ્રોગ્રામ કે જે અવેરનેસ ઓન આયુષ. તમે જાણો છો કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હોય કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હોય કે લોકલ ઓથોરિટી હોય, અત્યારે આયુષ માટે સરકાર ઘણું કામ કરી રહી છે. અને એવો અભ્યાસ, એક સર્વે એવું કહે છે કે દર 2 વ્યક્તિમાંથી 1 વ્યક્તિ આયુર્વેદ કે આયુષમાં માને છે. આજે જ જો મેં ઇકોનોમિક્સ ટાઈમ્સ મેં વાંચ્યું કે એમાં એક રિપોર્ટેડ ન્યૂઝ છે કે જે ડાયાબિટીસ હોય તો તેની એક એવરેજ 3 મહિનાની, દરેકને ખબર છે ને 3 મહિનાની એવરેજ કે HbA1c, તો એ જે 3 મહિનાની એવરેજ તેવું એક રિસર્ચ આવ્યું છે કે ભાઈ એ ઇટ ઇઝ નોટ રિલાયબલ, અથવા તો એને તમે ઓથેન્ટિક ગણીને દરેક કિસ્સામાં એને એપ્લાય નહીં કરી શકો. એટલે આ કેટલી અગત્યની વાત છે. જે આપણા આયુર્વેદમાં આવું નથી. આપણા આયુર્વેદ એ આપણી સંસ્કૃતિ છે કે જેમાં જે કંઈ પણ શરીરમાં તમારી તકલીફ હોય, જે તકલીફ આવતી હોય તે પહેલાં જ એનું નિરાકરણ કેવી રીતે લાવવું એનો એક નૈસર્ગિક ઉપચાર કરવામાં આવતો હોય છે. અને એ નૈસર્ગિક ઉપચારની જ આ બધી શાખાઓ છે. યોગા, આજે ભારત દેશે આપણા વડાપ્રધાનશ્રીએ દુનિયાને યોગા કરતાં શીખવી દીધા છે, અને દુનિયા આજે યોગા ડે તરીકે સેલિબ્રેટ કરે છે. આપણે આવા આયુષના સેન્ટર ગવર્મેન્ટે સ્ટાર્ટ કર્યા છે. તમને ખબર હોય તો મહારાષ્ટ્રમાં પુણેમાં ઔંધ ટાઉન જે છે ત્યાં આવું એક સેન્ટર ચાલી રહ્યું છે જ્યાં કેટલાય લોકો એની સારવાર લે છે. એક આંકડો જો કહું તો લગભગ ઓપીડી પેશન્ટ હોય તો 50,000ની આજુબાજુ પેશન્ટ તેનો લાભ લીધો છે. ને જે અંડરવેન્ટ થયા છે, એટલે કે જેણે સર્જરી કે કોઈ એવી ટ્રીટમેન્ટ કરાવી છે, ખાસ કરીને પંચકર્મ થેરાપી જેણે લીધી છે, એ 6,000 કરતાં પણ લોકોએ ત્યાં પુણેના એક જ સેન્ટરમાં આટલી સર્વિસીસ લીધી છે. તો એના પરથી આ જે આયુષ જે છે કે જે યોગા હોય કે પંચકર્મ હોય, આ બધી જે આપણે વિધિ કરવાની છે આપણા શરીર માટે, નિરોગી બનવા માટે જે કરવાની છે, તેના માટે લોકો આજે કેટલા અવેર થઈ રહ્યા છે, લોકો એ તરફ જઈ રહ્યા છે. એ જવું જરૂરી છે. દરેક કિસ્સામાં તમે એલોપેથી પર તમે ડાયરેક્ટ જાઓ એના કરતાં તમે નેચરોપેથીથી કંઈક મેળવી શકતા હો ને એ જો ઈલાજ થઈ શકતો હોય તો એનાથી ઉત્તમ બીજું કશું જ નથી. હું માનું છું કે આ પ્રોગ્રામ પછી આપણે ફક્ત આ પ્રોગ્રામને કઈ રીતે સારા રહેવું અથવા સારા દેખાવું એના માટે પ્રોગ્રામ નથી કર્યો, પણ આપણે આ યોગા હોય કે નેચરોપેથી હોય કે આયુર્વેદના કોઈ પણ ઉપચારને આપણે કઈ રીતે આપણા રોજબરોજના જીવનમાં એને અપનાવવો જોઈએ અને એ દિશામાં જવું જોઈએ અને એનો લાભ લેવો જોઈએ, એના માટે આજનું આ સેશન રાખવામાં આવ્યું છે. અને એનાથી શું લાભ થશે, જેમ કે સરકારે ફ્રી આયુષ ટ્રીટમેન્ટ આપી, લગભગ 6 મિલિયન એક્સ સર્વિસમેનને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ આપી, આયુષ આપણું મિનિસ્ટ્રી છે ત્યાંથી આપવામાં આવી છે. તો સરકાર પોતાના પ્રયત્ન કરે જ છે, પણ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પણ એનું એક ઉત્તરદાયિત્વ સમજે છે અને એ ઉત્તરદાયિત્વના ભાગરૂપે આપણે આજે એક અવેરનેસ સેશન રાખ્યો છે. હું આ યોગા, આયુર્વેદા અને નેચરોપેથી કે હોલિસ્ટિક જે હિલિંગ છે એ કઈ રીતે લઈ શકાય અને એના શું લાભ મેળવી શકાય એ તો આજે આપણા જે વક્તા છે તે આપણને સમજાવશે. પણ હું માનું છું કે આ સેશન પછી તમે એને જો ગ્રહણ કરશો તો જીવનમાં શારીરિક નહીં પણ માનસિક રીતે પણ ઘણા બધા લાભ મેળવી શકશો. તો ફરીથી આપ સૌનો આવકાર, વેલકમ, અને આપ સૌએ મને સાંભળ્યું તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. अभी समय आ गया है हमारे स्पीकर का फेलिसिटेशन करने का, तो मैं चाहती हूँ SGCCI के ट्रेजरर नितेश भाई, आयुष कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर मनशाली और को चेयरपर्सन नितेश भाई
अभी आयुष कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर मनशाली, मैं चाहती हूँ आप आपका। काफ़ी देर से 2 शब्द बोल ही रही हूँ, सो फैमिलियर हो ही चुके हैं। आई एम डॉक्टर मनशाली, मेडिसिनल प्लांट साइंटिस्ट, आयुष मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। और आयुष का जैसा कि हमने बात करी, आयुष कमेटी का गठन इसी साल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया गया है लोगों में जागरूकता लाने के लिए। एक्चुअली आयुष है क्या, किस तरह से हम सोशल कम्युनिटी में उसकी मदद से आप लोग को निरोगी कर सकते हैं, उसमें एक रूप पे हर वो हॉलिस्टिक हीलिंग, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, होम्योपैथ को लाया गया। बेसिक उद्देश्य था प्लांट से बनी हुई मेडिसिन, एक नेचर से बनी हुई ऐसी दवाइयाँ जो आपके शरीर को 99.99% तक नुकसान ना करें। अगर कोई मेडिसिन, कोई भी सीवियर केस है, मेरा ये कहना नहीं है कि आप मेडिसिन ना लें, कभी भी कोई सीवियर केस होता है तो हमें एलोपैथ की ज़रूरत होती है, ये हम मानते हैं। लेकिन टू प्रिवेंट योर हेल्थ हमें नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, एक नेचुरल हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए इस आयुष कमेटी का गठन हुआ, जो हम आपको हर महीने एक सेशन के ज़रिए बताते हैं किस तरह से नेचुरल लाइफ जी जा सकती है। अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों में चेंज करके, कुछ नहीं तो पानी पीने के तरीके को चेंज करके हम अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, ये हमारी एक आयुष कमेटी की पहल है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे चैम्बर के प्रेसिडेंट निखिल भाई का, हमारे ट्रेजरर नितेश भाई का, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अशोक भाई जीरावाला का, जिन्होंने ये बात हमारी समझी और हमें ये परमिशन दी कि आयुष की एक कमेटी चैम्बर में बनाई जाए और चैम्बर हर महीने ये पहल करे जहां हम आपके साथ इंटरेक्ट करें। आज का हमने सब्जेक्ट लिया है हॉलिस्टिक हीलिंग। कविता मैडम से हम सुनेंगे किस तरह से नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और योग करके हम एक स्वस्थ शरीर पा सकते हैं। सो ज़्यादा देर न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगी कविता मैडम को टू टेक द चार्ज एंड फेलिसिटेट अस विथ योर वर्ड्स। थैंक यू सो मच। प्लेस उन्होंने जो बनाया है, जिसके अंतर्गत वो डिटेल में हमको समझाया कि क्या आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, होलिस्टिक हीलिंग क्या होता है और हम कैसे उससे स्वस्थ रह सकते हैं। थैंक यू मैम। प्लीज़ आपका बहुत बहुत आभार, आपका मितेश जी, और आपके हमारे डॉक्टर साहब जो हैं पटेल जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। जयश्री जी, आपने ये अवसर मुझे दिया है। आयुष कमेटी का बहुत बहुत आभार, SGCCI का आभार। बड़ी अजीब सी बात है कि हमें अपने ही विज्ञान के बारे में आज खुद बातें करनी पड़ रही हैं। ये एक विडंबना है हमारे लिए। जबकि गीता से अगर मैं बात शुरू करूं तो गीता के 3 शब्द हैं, योग, कर्मसु, कौशलम। आप सबको पता होगा। गीता ने इतना सिंपल हमारे सामने योग को लाके रख दिया कि हमें कुछ करना ही नहीं है, छोड़ दो सब चीज़ें। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि अपने कार्य में कुशलता, अपने कार्य में कुशलता, बिना स्वार्थ के पूरी निष्ठा और लगन से, बिना फल की इच्छा किए हम कार्य करते जाएं तो वो भी योग है। क्योंकि गीता जब लिखी गई तो उसमें सभी सारे योग हैं, उसमें जितने भी अपने यहाँ योग लिखे गए हैं, सारे कर्म योग, ज्ञान योग, सारी चीज़ों की चर्चा है। लेकिन उन्होंने साथ साथ हमारे इस काल के लिए, इस समय के लिए, कि जब उन्हें पता था कि हम कुछ भी करने लायक नहीं बचेंगे, तो उन्होंने कहा इतना तो कर लो। लेकिन हमारे साथ दुख की बात है कि हम इतना भी नहीं कर पाते। तो योग को समझना बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये हमारी अपनी ही सभ्यता है, अपना ही विज्ञान है। पर इसके अलावा अगर मैं अपनी बात शुरू करूं तो मैं सबसे पहले देखूंगी कि आजकल जो हम देख रहे हैं, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, जिसे हम जेनजी कहते थे। आज वो क्या कर रहे हैं, एक नई पीढ़ी किस खोज में लगी हुई है उन लोग, जबकि जिस तरफ हम देख रहे हैं कि एक एडिक्शन बढ़ा हुआ है,
एक सब्सटेंस हो या डिजिटल हो, किसी भी चीज़ का जो एक एडिक्शन बढ़ा हुआ है, एंग्जाइटी है, आपका लाइफस्टाइल डिजीज़ बढ़ रही हैं, उसके बाद भी उन लोग किधर जा रहे हैं, उनकी खोज किधर है? नई जनरेशन क्यों कॉन्शियस हो रही है? जो कर रही है आजकल मॉर्निंग फिटनेस क्लबिंग, आप वो कर रही है भजन क्लबिंग, वो कर रही है योगा सेशंस, वो ले रही है मेंटल अवेयरनेस सेशंस, वो चूज़ कर रही है कोल्ड प्लंजेस को। ऐसा क्यों? इतना सब कुछ उनके पास है, कितना टेक्नोलॉजी उनके पास है, धन उन्होंने कमा लिया है, कंफर्ट की कोई इंतहा नहीं है, फिर भी क्या चीज़ मिसिंग है जिसकी उसने खोज है? हमें समझना होगा कि खोज किस चीज़ की है, जिसे हम कहते हैं सनातन। एक्चुअली खोज उसी की है। सनातन, मेरे लिए सनातन का अर्थ है कि जिसके अंदर कोई चीज़ की खोज है वो सनातन है। जो निरंतर परिवर्तित हो रहा है वो सनातन है। एक जगह जो टिक गया वो सनातन हो ही नहीं सकता। तो हम वो किधर जा रहे हैं? उसी खोज की ओर जा रहे हैं। ऊब गए हैं वो, उससे थक गए हैं और उनको मालूम पड़ गया है कि हम किस चीज़ के लिए हमें आगे बढ़ना है। और ये उनकी खोज कोई नई नहीं है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजीवन, हमारे बाप दादा भी आप लोगों ने देखे होंगे, तो उनका जो लाइफ स्टाइल था वो अपने आप में योग था। वही लाइफ स्टाइल की खोज में वो बच्चे आजकल भटक रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन अब हमारी ड्यूटी बनती है, हम लोगों की, हम इस पीढ़ी की ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें एकदम प्रमाणिक तथ्य और सत्य चीज़ देने के काबिल रहें। उनके पास हम सारी चीज़ें उस तरह से लेके जाएं कि वो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। चूँकि ये तो चक्र है, समय का पहिया है जो घूमता ही रहेगा। एक जगह बिगड़ेगा और फिर वापस वहीं आ जाएगा। समय एक काल, एक पहिया है। तो यही दुनिया भी एक पहिया है। ब्रह्मांड पूरा एक, उसकी ओर न छोर पता है। हर चीज़ घूम के वापस आती है, जैसे फैशन में हर चीज़ घूम के वापस आ जाती है थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। ऐसे ही उनकी अति हो चुकी है और अब वो खोज उनकी वहीं आ गई है। जहाँ हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, लेकिन उनकी खोज उनके अंदर निरंतर जारी है। बस पहुँचना है उन तक कि उन्हें चाहिए क्या। क्योंकि एक्चुअल में उनकी ये जो रीडिस्कवरी है, उनके लिए डिस्कवरी है, लेकिन हमारे लिए तो उनकी रीडिस्कवरी है, ये अधूरी है। क्योंकि मॉडर्न लाइफ ने ना हर चीज़ को कंपार्टमेंट्स में बांट दिया है। वो ढूंढ रहे हैं फिजिकल हेल्थ, वो ढूंढ रहे हैं मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वो ढूंढ रहे हैं स्पिरिचुअल हेल्थ, लेकिन नहीं। जबकि हमारे यहाँ लाइफ कभी भी कंपार्टमेंट्स में नहीं थी। ये एक धारा है, एक प्रवाह है, एक ही माला के सारे मोती हैं। हमारे को माला उन्हें देनी है, उस धारा में उनको लेके जाना है। उसके दो फायदे हैं, उनको ले जाते जो हम कहीं अटक गए थे उनके साथ हम भी बह जाएंगे। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते माएँ खुद पढ़ जाती हैं, ऐसे ही। तो ये एक बहुत सुंदर अवसर हमारे लिए भी है। अब चूँकि समझना हमें ये होगा कि जिसको वो ढूंढ रहे हैं उसका एक्चुअल में एक ही चीज़ है हमारे यहाँ, जिसे कहते हैं, जैसा कि अभी मनशाली जी ने भी कहा, होलिस्टिक लिविंग। है कुछ नहीं, बस थोड़े से रहने के तरीके उन बच्चों को पता हैं, लेकिन वो किस तरीके से कर रहे हैं वो अभी आधे अधूरे तरीके हैं, या भटके हुए हैं, या कुछ देर करते हैं कुछ देर नहीं करते हैं। तो फिर उनको उस लाइन पे लेके आना, उसके लिए पहले हमें खुद करना पड़ेगा। क्योंकि हमने भी मेरे अपने अनुभव के अनुसार, जिस तरह से अभी उन्होंने बताया कि मेरा शकुंत आश्रम है, तो शकुंत आश्रम ने भी उसको ना 4 कदमों में बांटा है, 4 हिस्सों में स्टेप्स हैं। सबसे पहला है योग। योग के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये कोई छोटी मोटी सी नदी नहीं है, ये एक अथाह समुद्र है जिसका ना ओर है ना छोर है। और इसको महर्षि पतंजलि ने जब लिखा, तो ये लिखा महर्षि पतंजलि ने, लेकिन योग तो पहले से ही था हमारे यहाँ। उन्होंने इसको उल्टा लिखा, उन्होंने शुरुआती समाधि पाद से करी, जबकि आज हम उसको लास्ट में गिनते हैं। उन्होंने चूँकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, हमें लगता है ध्यान लगेगा ही कैसे, समाधि की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती।
तो इसके लिए उन्होंने बड़े आसान सी चीज़ें, बड़े बहुत ही आसान तरीके बताए हैं। सबसे पहला उन्होंने पाद दिया है, अगर उल्टा चलें उनके हिसाब से, उनके लिखे हुए के हिसाब से अगर मैं उल्टा चलूँ तो ये है, पहला है यम। सबको मालूम है कि जीवन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। क्योंकि एक सबसे पहले यम के लिए कायदा है कि झूठ नहीं बोलना है। अब झूठ किससे नहीं बोलना है? झूठ खुद से भी नहीं बोलना है। खाली मैं झूठ नहीं बोलता हूँ के साथ हम खुद से भी झूठ बोलते हैं, तो खुद से भी झूठ नहीं बोलना है। और लालच, खुद का भी लालच इतना हम त्याग कर दें, खुद का भी लालच हम त्याग कर दें। वही वाली बात है कि विषयों से आसक्ति। योग करने के लिए शरीर में लोच चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं। मुझसे योग नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मेरा शरीर तो बहुत स्टिफ है भाई। फ्लेक्सिबिलिटी आएगी कहाँ से? फ्लेक्सिबिलिटी कोई एक चीज़ नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मन से भी जुड़ी होती है, हमारे विचारों से जुड़ी होती है। तो जैसे हमारे विचार होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वैसी ही होती है। दूसरा एक नियम आ जाता है उसके बाद, जो पाद है उनका, बहुत छोटे छोटे मैं बताती हुई चलूँगी मैं। यम के बाद आता है नियम। नियम है स्वच्छता। अब स्वच्छता में हम अपने घर बड़े चमका के रखते हैं, अपना देश हम बराबर रखते हैं, अपने मोहल्ले भी बराबर ही रखते हैं, बस घर के मुकाबले। लेकिन यहाँ स्वच्छता अपने मन की भी जुड़ी हुई है, अपने मन को भी स्वच्छ रखना है। और इसमें तपस्या, तपस्या का अर्थ क्या है? किसी भी चीज़ को, जैसे साधना, साधना है किसी भी चीज़ को साध लिया, वो साधना है। साधना कोई बैठ के करने वाली चीज़ नहीं होती। जैसे तेंदुलकर ने या कोहली ने क्रिकेट को साध लिया, हम लोगों में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को साध लिया। तो साध लिया कोई चीज़, साधना, उसको हम साधना कहते हैं। तो इसी से आगे जब हम बढ़ जाते हैं तो वो तपस्या हो जाती है। तो इसलिए इसी के सबसे बड़ा इसमें एक और आगे चल के आता है कि अपना समर्पण भगवान के आगे। अब भगवान कौन है, एक प्रश्न उठता है, क्योंकि मेरे जैसे लोग आराम से भगवान को भी नहीं मानते, सब कुछ मानते हुए भी भगवान को नहीं मानते। लेकिन जब भगवान की समझ में आ जाती है कि हम ही भगवान हैं, तो खुद के आगे समर्पण। और समर्पण से पहले क्या ज़रूरी है कि खुद से भी झूठ नहीं बोलना, खुद से भी लालच नहीं रखना, विषयों से आसक्ति नहीं रखना। तो समर्पण भगवान के आगे, खुद के आगे समर्पण। तो इसलिए एक समर्पण की भावना, इसीलिए हमारे यहाँ गुरु परंपरा रखी गई है कि गुरु के आगे इंसान समर्पित हो जाए। जैसे ही वो समर्पित हुआ, उसमें विनम्रता आ गई। बड़ा विज्ञान है, बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है। गुरु रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा कहा जाता है। शुरू से सुनते आ रहे हैं, गुरु होना बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसका वैज्ञानिक तथ्य ये है कि एक वही सत्ता ऐसी है, एक वही तत्व ऐसा है जिसके आगे हम समर्पित हो जाते हैं। जहाँ समर्पण आ गया, हमें विनम्रता आ गई। विनम्रता आ गई तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अब हम आराम से आसन कर सकते हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। आसन हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वैसे आसन का अर्थ है स्थिरम सुखम आसनम। जिस किसी आसन में हम स्थिर होके सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें, वो कोई भी आसन हो सके, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने इसमें कुंभ में देखे होंगे कि अजीब अजीब हमारे यहाँ साधु सन्यासियाँ खड़े हैं, वो युगों से खड़े हैं भैया, इतने साल से वो खड़े खड़े ही तपस्या कर रहे हैं। किसी ने हाथ ऊपर उठाया हुआ है, किसी ने पाँव ऊपर उठाया हुआ है। उन्होंने उसमें वो सुख ढूंढ लिया, स्थिरता है उसमें। स्थिरम सुखम आसनम। एक्चुअल में आसनों में मेडिकल फील्ड बाद में ढूंढा गया है। पहले उसमें फील्ड था कि हमें योग करना है। योग मीन्स हमें खुद से जुड़ना है, हमें ध्यान की ओर बढ़ना है, हमें शांति की ओर बढ़ना है, हमें सुख की ओर बढ़ना है। तो हमारे लिए सबसे पहले आसन जो आए वो बड़ी अलग रूप में आए, लेकिन यहाँ पे हमारे आसन जो हो गए आजकल मेडिकल साइंस में हो गए। बोले अच्छा ये वाला आसन कर लो, इससे आपका बीपी सही हो जाएगा, ये वाला आसन करो, इससे डायबिटीज़ हो जाएगी। इस पे तो रिसर्च बाद में हुई है
कि ये इतना बड़ा विज्ञान है और उसको भी किसने किया है? 90% वो काम वेस्ट ने किया है। BKS अयंगर हुए थे, बहुत बड़े योगा गुरु कहूँगी मैं उन्हें, गुरुओं के भी गुरु, जिनका एक अंग हमारे शकुंत आश्रम में भी है। कुछ लोग यहाँ से आए भी हैं, मेरे को चेहरे देख के याद आ रहा है, तो उन्होंने वो अनुभव भी लिया है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उनके गुरु ने आदेश दिया कि अब तुम जाओ वेस्ट में और इस विज्ञान को फैलाओ। वो गए और सही बोलो तो वहाँ इतना काम हुआ है जितना कभी भी हमारे यहाँ ना हुआ ना होगा। जो हो चुका पहले लिखा जा चुका वो अलग है, लेकिन आज के समय में ना हुआ है ना होगा। वहाँ से जो रिसर्च आई उसके आधार पे हम चले कि भाई चलो चलो अच्छा ये करो, योग करो, योग करो। वो तो भला हो रामदेव बाबा का कि उन्होंने वापस इसको पुनर्जीवित किया। तो हमारे यहाँ उसके बाद नेक्स्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? हम लग जाते हैं उसमें, बोले बहुत जोर जोर, कहीं भी प्राणायाम नहीं है। जो भी कुछ सिखा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में हमारे को स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मैं जब एंटर हुई तो वंशाली जी बात कर रही थी उपवास की। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो युगों युगों से उपवास पे हैं, मतलब युगों युगों से, साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, सिर्फ पानी थोड़ा सा पी लिया, थोड़ा सा जल उबला हुआ ले लिया, या किसी ने गंगा जल ले लिया, या किसी ने वचन ले लिया कि सिर्फ नर्मदा का जल लेके पूरा दिन में बिताऊंगा। वो कैसे जिंदा है? कैसे उनकी ऊर्जा इतनी उच्च हो रही है? तो उसका कारण है ऑक्सीजन, प्राण, जिसे हम प्राण कहते हैं। और प्राणायाम क्या है? अपने सांसों को नियमित करना। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी सांस कभी भी नोटिस करना आराम से, बिल्कुल, कि उस टाइम हमारी सांस चल रही थी, आजा तू। कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह रही हूँ, उस टाइम हमारी सांस एक कुत्ते जैसी होती है। और हमारी सांस होनी कैसी चाहिए? जो पता ही ना पड़े हमने कब ली और कब चली गई। इतनी गहरी कि उसको कम से कम 2 सेकंड पेट में रुकने का समय मिले, 2 सेकंड सीने में रुकने का समय मिले, 2 सेकंड यहाँ रुकने का समय मिले। इस तरह की सांस कम से कम 1 मिनट में जितने, आजकल अगर आप अपने सांस गिनेंगे, मैं अपने गिनूँ तो मेरे भी थोड़े ज़्यादा ही मिलेंगे अभी भी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उम्र के बाद इस विज्ञान को समझा है। खुद मेरी उम्र अच्छी खासी है, तो इसमें अगर मैं अपने सांस गिनूँ तो मेरे भी सांस ज़्यादा हैं। होने के लिए कायदे में 14 से 16 सांस 1 मिनट में होने चाहिए, है किसी के? तो अब क्या होगा? हम लोग तो रोगी तो होंगे ही होंगे ना। और हम जाएं सुबह क्लास में और करें, हम नहीं सर हमें तो प्राणायाम करा ही दो बस, और लगे हुए हैं क्यों? क्योंकि हमें कपालभाति करके पेट घटाना है। तभी भी प्राणायाम नहीं करना है, पेट घटाना है। और सही मायने में तो पेट जिसे हम अंदर बाहर कर रहे होते हैं वो पेट है ही नहीं। जिसे हम हिला रहे होते हैं कपालभाति में, उसको नहीं हिलाया जाता है। खाना जिसमें जाता है वो पेट है, और वो हमारा ये हिस्सा होता है। इसको बोलते हैं डायफ्राम। डॉक्टर साहब जानते हैं, इसको बोलते हैं डायफ्रामा। तो डायफ्रामा को हिलाना होता है। कितने लोग हिला सकेंगे? नहीं हिला सकेंगे। और जब हिलाएंगे तो सांसों की ना आवाज आएगी ना कुछ होगा, इतनी शांति से हिलेगा। जो हमारे यहाँ सांसों की गति को नापने का ढंग था ना, वो फेदर लेके, एक पंख लेके, ऋषि मुनि उसको यहाँ नीचे रखते थे अपनी गोद में। वहां भी उसका एक रेशा नहीं हिलना चाहिए था, ना सांस छोड़ने में ना लेने में। इतना धीमा और गहरा सांस, उसे प्राणायाम कहेंगे। उसमें चाहे आप अनुलोम विलोम कर लो, वैसे तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसका सांस गहरा, जिसने अपने प्राणों को गहरा कर लिया, जिसने सांसों को गहरा कर लिया, जिसने उस आयाम को समझ लिया, उसे प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाता है प्रत्याहार। बड़ा शाब्दिक सा अर्थ है इसका, प्रत्याहार, जो हमारे विपरीत है
वो आहार जो हमारे लिए लेना है वो विपरीत, अनुकूल और प्रतिकूल आहार। आहार से हम अर्थ लगा लेते हैं भोजन। भोजन तो है, भोजन तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा जो हम पूरा दिन विचारों को खाते हैं, पूरा दिन जो चबाते रहते हैं अपने दिमाग में विचारों को, अच्छा तू आ जा, अच्छा तू चला जा, अच्छा तू ये कर ले, अच्छा तू ये कर ले, सोशल मीडिया देख ले। डिजिटल फास्टिंग होनी चाहिए, डिजिटल फास्टिंग होनी चाहिए। और उसका बड़ा अच्छा तरीका है, एक फ़ोन रखो घर में, सारे सबके अकाउंट्स उसी में रखो, सबका घर में एक टाइम निश्चित कर दो, सब 1 घंटा ये, 1 घंटा, आधा घंटा इसका, आधा घंटा इसका, आधा घंटा, एक एक्स्ट्रा फ़ोन रखो, सबके अकाउंट्स उसी में हो, सबके लॉक पिन उसी के, उसने अपने अपने लॉक लगा रखे हो, कोई किसी का नहीं चेक करेगा। अपने अपने फ़ोन में से हटा दो, तब तो आप बच सकते हो उससे। यूट्यूब भी डिलीट कर दो, वो भी बीमारी है। हम लोगों ने खुद अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं, शकुंताश्रम का खुद का अकाउंट है, यूट्यूब चैनल भी अभी बनाने जा रहे हैं, तब मैं ये बात बोल रही हूँ, पर मेरा अपना पर्सनल अकाउंट अब बनाया है। क्योंकि हमारे विचार वो बड़े भयंकर चीज़ हैं। हमारा जो प्रत्याहार का अर्थ है, हमारी सारी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेना। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं सूर्य भगवान की प्रतिमा दिखाई जाती है तो उसमें वो 7 घोड़े मतलब 7 इंद्रियों को उन्होंने लगाम कसी हुई है। ये बिंब है उनका कि जिसने भी अपनी 7 इंद्रियों को लगाम कस ली वो सूर्य हो गया। सूर्य कोई आसमान नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमारे अंदर भी सूर्य है, हमारे को बस वो लगाम कसनी है। तो जो जिसे सूर्य बनना है वो अपनी अपनी इंद्रियों को कस ले और सूर्य बन सकता है। इसके बाद आ जाता है धारणा। हम कहते हैं हमें ध्यान करना है, लेकिन ध्यान किसका करना है? तो ध्यान है, पहले हमें उससे पहले धारणा लेनी होती है, एक विचार, एक लक्ष्य। मैंने लक्ष्य ले लिया कि मेरा शकुंताश्रम चले। मनशाली जी ने लक्ष्य लिया हुआ है कि आयुष कमेटी को बहुत ऊंचा ले जाना है। अब फोकस्ड है, वो एक लक्ष्य पे केंद्रित, वो धारणा है। ये धारणा है। 7वां पाद है ध्यान, जिसके लिए आज पूरी दुनिया परेशान है। मेरे को मेडिटेशन करना है, गाइडेड मेडिटेशन करना है, म्यूजिक मेडिटेशन करना है, ये करना है, वो करना है। कुछ भी नहीं है वो। आपका अपनी धारणा के बारे में जो चिंतन है, शांति से बैठ के चलते फिरते उठते बैठते, वो ध्यान है। हर एक स्कूल में बच्चों को कहा जाता है ध्यान से पढ़, वो ध्यान है। माँ बच्चों का जो ध्यान रखती है, पिता जो बच्चों का ध्यान रखता है, आजकल नहीं रखते। उसका कारण मैं बता देती हूँ। जो बच्चों के हित में है वो करना, वो उनको प्रोवाइड करना, वो उनका ध्यान रखना है। जो उनको चाहिए, जो चाहे उनको बिगाड़ सकता है, जैसे अभी आजकल वो 3 बच्चियों का केस चल रहा है या इस तरह के केसेस हैं, उनके माँ बाप ने ध्यान नहीं रखा। तो ध्यान, ये भी ध्यान है, जिसे भी ध्यान कहते हैं। अपने पूरे होश में रहना, अपनी पूरी चैतन्य आत्मा को हर वक्त चैतन्य रखना, वो ध्यान है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम प्रकृति में अपना ध्यान चढ़ा के, अपनी आंखें चढ़ा के, वो हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को रिलैक्स जरूर करता है, लेकिन अगर हम पूरे टाइम ध्यान में हैं तो उसकी आवश्यकता ही ना पड़ेगी। और 8वां पाद आ गया जो है समाधि। जब हमसे ध्यान ही नहीं हो पा रहा तो हम समाधि की सोचेंगे भी क्या? अपनी चेतना को उस महाचेतना में विलीन महसूस करना, एक हो जाना, अपने अंदर से अद्वैत को खत्म कर देना, द्वैत में बिल्कुल द्वैत को खत्म करके अद्वैत में आ जाना, समाधि है, और कुछ भी नहीं है। अब छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आसनों के बारे में बताऊंगी कि आसन जो होते हैं उसमें हम कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी शरीर की क्षमता को देखते हुए कहें कि जी हमसे आसन नहीं होगा। कुर्सी में बैठ के भी आसन हो सकते हैं, क्योंकि हमें इस समय ज़रूरी है निरोगी होने की। अपने सांस पे हर वक्त ध्यान रख के
कि मेरा सांस किस कदर आ रहा है, हम प्राणायाम कर सकते हैं। हमारी अपनी, जिस तरह से मैं अभी दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अभी उन्होंने उपवास का जिक्र किया, उपवास के जरिए अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखना। जैसे एक पहले कहा जाता था कि अपनी पूजा जो करनी है, जब करना है, वो खाने से पहले, भोजन से पहले करो। उसका कारण क्या है? उसका कारण है जब हमारा पेट भारी नहीं होगा तो हमारी सांसों की गति एक लय में चलेगी। जब हम जाप करेंगे, जाप का एक अपने आप में, जाप में एक प्राणायाम होता है। अगर कभी कोई महसूस करे तो अगर कोई तरीके से जाप कर रहा है तो अब मैं कहूँ ओम भूर्भुवस्सुवः, तो मैंने सांस लिया, ओम भूर्भुवस्सुवः में सांस लिया, तत्सवितुर्वरेण्यं में रोक के रखा, भर्गो देवस्य, भार शक्ति ऐसा है कि सांस छूटेगी, भर्गो देवस्य धीमहि, सांस छूटी, धियो यो न प्रचोदयात् में मैंने रोक लिया और फिर दूसरा सांस दूसरे मंत्र के साथ लिया। तो क्या हुआ? प्राणायाम हुआ। और जब वो सांसों की गति एकदम लय में बैठ गई, निरंतर हम 108 या 3 माला करी, 5 माला करी और निरंतर एक गति इस तरह से चल रही है, तो हमारी स्पाइन में धीरे धीरे वो ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी। ये इसका विज्ञान है। इसलिए खाली पेट पूजा की जाने का हमारे यहाँ विज्ञान रखा गया है, जिसको हमें बाद में कह दिया गया भूखे भजन न होगा गोपाला, है ना? भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। जो भी था, हम लोग बचपन में ऐसे ही कहते थे, जब माँ कहती थी तो हम यही कह देते थे। तो इसका विज्ञान आज समझ में आ रहा है। दूसरा कदम जो हमने लिया हुआ है वो आयुर्वेद लिया हुआ है। जैसा कि आयुर्वेद का भी जिक्र हो रहा था, आयुर्वेद कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद पूरी तरह से एक दबा हुआ महाविज्ञान है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जिस विज्ञान में सिर्फ नाड़ी पकड़ के आपकी जन्मपत्री बना दें। शायद मैंने जिक्र किया था आपसे मनशाली जी कि मेरे पास एक वैद्य हैं जिनको मैं वर्षों से फॉलो कर रही हूँ, जिनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया है। उन्होंने मेरी नाड़ी पकड़ के मेरी होरोस्कोप बनाई और मुझे लगा कि ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सच बोल रही हूँ कि ये कोई होता ही है, पहली बार में होता ही है जब आपके पास ऐसा होता है। तो मेरे को कहा उन्होंने कि आपके पास आपकी होरोस्कोप है। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी होरोस्कोप में विश्वास नहीं किया। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें लिख के दी कि आपके साथ आगे आने वाले महीनों में ये होने वाला है। तो मैंने कहा कि आपने मेरे दिमाग में डाल दिया, नहीं होएगा तो हो जाएगा। विज्ञान है जैसा। बोले नहीं, आप जैसे खोपड़े को ना ये विज्ञान बदलना आता है और आप बदल भी सकती हो। तो मैंने कहा कि अब आप कैसे तथ्य में मान लूँ कि ये सही है। तो उन्होंने कहा कि आप आज जाइए, वहाँ बाजू में सेंटर दिया उन्होंने, जगह का नाम दिया, ऋषिकेश की बात है। तो वहाँ कंप्यूटर पे वो बना देते हैं, आप डेट और टाइम दे दो। निकाला तो वो जो स्क्वायर होता है ना 12 हाउसेस, वो एग्जैक्ट सेम था। इवन डिग्रीज उसमें जो लिखते हैं वो सेम थी। तो मुझे तब आश्चर्य हुआ पहली बार। तब मुझे लगा कि नहीं, कोई चीज़ तो है, ये जो कह रहे हैं तो मुझे मान लेना चाहिए। तो इतना बड़ा विज्ञान है। तब उन्होंने मुझे दिखाया कि उसमें देखो आगे एक बहुत सारी डिटेल में नाड़ी शब्द लिखा है, होरोस्कोप में नाड़ी शब्द लिखा है। तो बोले ये हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, नाड़ी से जुड़ी हुई है, ज्योतिष से और ज्योतिष नाड़ी से। तो ये हमारा विज्ञान है जिसे हम आज मानने के लिए तैयार नहीं है, मतलब जिस पे हमें भरोसा नहीं है। या कह दो हम लोग इतने कंफर्ट जोन में चले गए कि हमें इंस्टेंट चीज़ें चाहिए, इंस्टेंट मैगी चाहिए कि 2 मिनट मैगी हो गया है, कि सिर में दर्द है हमें नहीं है इंतज़ार। जबकि आयुर्वेद में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आयुर्वेद में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि बिल्कुल 2 मिनट में भी आपका हेडेक निकल जाता है। हमारे यहाँ केरला के जो डॉक्टर हैं वो ये मिराकल्स करते हैं गेस्ट के साथ। किसी को बिल्कुल ऐसा हो रहा है, पेट में बर्निंग हो रही है, कुछ हो रहा है, वो 1 डोज देते हैं और 5 मिनट बाद वो आदमी बोलता है नहीं, आई एम फाइन नाउ। और सिर्फ इंडियन नहीं, मैं इसमें फॉरेनर्स की भी बात कर रही हूँ, वो ऐसी हमारे यहाँ हो रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये 5 तत्वों को समेट के पूरी प्रकृति
हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं, हम भी पांचों तत्वों से बने हैं। तो उन पांचों तत्वों को उन्होंने समेट के, उसका विज्ञान जान के, उसके आधार पर जो रिसर्च करी है वही धारणा और ध्यान। पहले धारणा ली, फिर उस पर ध्यान किया, चिंतन किया, तो उसमें उनको जो विज्ञान मिला वो उन्होंने 3 दोषों पे, त्रिदोषों पे बनाया। आप लोगों को मालूम होगी, वात पित्त कफ। तो वात में उन्होंने क्या किया है कि वायु और आकाश को पढ़ा है कि इसमें वायु और आकाश का कारण है। तो वायु और आकाश जो है वो हमारी किन चीज़ों के कारण होता है? हमारी श्वसन गति के लिए और हमारी तंत्रिका नलियों के लिए होता है। गति, मोबिलिटी। तो जो हमारी, हम बुढ़ापे में या किसी उम्र में चल नहीं पाते, उसमें भी कई बार वात का ही परेशानी होती है। और उसमें दूसरा जो उन्होंने लिया है, पित्त लिया है। डॉक्टर साहब कहीं हो गलत तो बता दीजिए। तो उसमें पित्त में उन्होंने अग्नि और जल, अग्नि और जल में उन्होंने दीपन पाचन। अब हमारे यहाँ लगता है कि हमने खाना खा लिया और हमने डाइजीन पी लिया और सुबह हमारा पेट फ्रेश हो गया, दैट्स दीपन पाचन। नहीं, वो हमारे पेट में, हमारे शरीर में लग रहा है कि नहीं, या सिर्फ चर्बी बढ़ा रहा है, वो दीपन पाचन है। हमारे अंदर एनर्जी है या नहीं इतना खाने के बाद भी, तो वो दीपन पाचन है। इसके बाद आ जाता है कफ। उसमें उन्होंने जल और पृथ्वी को कंबाइन किया हुआ है, मतलब किया हुआ नहीं है, पकड़ा है। इसमें शारीरिक संरचना और एक लुब्रिकेंट्स को जोड़ा है। उसमें ये लुब्रिकेंट्स पे बात करते हैं। तो हमने नॉर्मली इसको, वात को वायु पकड़ लिया, पित्त को एसिड पकड़ लिया और कफ को म्यूकस पकड़ लिया, लेकिन ये खाली इतना नहीं है, इससे बहुत बड़ा विज्ञान है और इसकी प्रमाणिकता को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे को कोई परेशानी हुई, बहुत बड़ी परेशानी हुई, हम ज़रूर जाएं एलोपैथी में, क्योंकि उन लोगों ने भी कमाल के काम किए हैं। जिस कदर दुनिया में उन्होंने आयुष वाकई आयुष बढ़ा दिया है, वो भी कमाल की बात है। लेकिन वो होता क्या है कि एक बीमारी का इलाज लेके करते हैं हम, तो दूसरी साथ तोहफे में आती है। वो तोहफा ना आए, वो तोहफे से हम बचे रहें, उसके लिए इंस्टेंट रिलीफ अगर चाहिए तो वो लेके और हम तुरंत आयुर्वेद की तरफ मुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद जो है बिल्कुल कोर में काम करता है, क्योर करेगा वो। और केरला में आज भी बहुत ऑथेंटिसिटी बची हुई है, ये हमें मालूम है, तभी सब लोग केरला की तरफ भागते हैं। तो वो लोग का क्या है कि क्योर करते हैं, वो एकदम क्योर हो गया, लेकिन उसके बाद वो प्रिवेंशन भी देते हैं और उससे पहले भी प्रिवेंशन देते हैं, क्योंकि नाड़ी से उन्हें पता पड़ जाता है कि आपका ये बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, इतने दिन बाद आपको ये इफेक्ट हो सकता है। बहुत लंबे समय के, जबकि एलोपैथी में ऐसा नहीं होता है। एलोपैथी 15 दिन में हमको आसान से वही मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अगला जो आया है, इसमें आया है पंचकर्म। पंचकर्म जो है उसमें 5 कर्म हैं, जिसमें है वमन, विरेचन, नस्यम, बस्ती और रक्तमोक्षणम। और वो भी सारे सब पे अप्लाई नहीं होते। और यदि आपको यकीन ना हो तो मेरे यहाँ, मैंने अपने यहाँ सच में वो चीज़ें देख रही हूँ कि इतने छोटे टर्म में 2-2 दिन में उन्होंने क्योर किया है, उन्होंने आराम दिया है लोगों को। और फिर वही बात आ गई, मेडिकल साइंस कभी भी क्योर नहीं करेगा, वो सप्रेस करेगा। हमें ज़रूर लगता है कि वो क्योर हो गया, लेकिन वो सप्रेशन है। मैडम, इसमें ऐसा मैंने पढ़ा है कि अपनी बॉडी में 70% डिसीज ऐसे होते हैं कि वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए उनका यश फिर आयुर्वेद को वो ले लेते हैं। 100% दवाइयाँ, 100% डिजीज ऐसी हैं कि वो अपने आप सही हो जाती हैं। आप 70% की बात कर रहे हो, लेकिन उसका कारण क्या है कि वो बढ़ जाती हैं? उसका कारण है हमारी ईटिंग हैबिट्स। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन दवाई है, और अब हम क्या कर रहे हैं? दवाइयाँ अलग खा रहे हैं, भोजन ज़्यादा खा रहे हैं, भोजन को पचाने के लिए दवाइयाँ खा रहे हैं।
उस स्थिति पे आ जाइए आप, आपकी एक भी बीमारी के लिए कोई भी मेडिकल, ना आयुर्वेद ना नेचुरोपैथ, किसी की भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद बता दूं अपने बारे में, सॉरी टू से, मुझे फीवर होता है, मैं अपना रूम लॉक करती हूँ, 2-3 लीटर 4-5 लीटर पानी की केन रखती हूँ, ग्लास रखती हूँ, एक ग्लास में गर्म पानी रखती हूँ तुलसी डाल के, रूम लॉक। 3 दिन बाद वो रूम खुलेगा, चाहे कोई कितना भी रूम पीट ले, और 3 दिन बाद मैं सीधा ऑफिस जा रही होंगी। वो वायरल होगा कोई भी, ये नियम है। इवन मेरी मदर इन लॉ, शी वॉज अबाउट 87 एट दैट टाइम, 88, उनको कोरोना हुआ। उनको दुनिया, मतलब परिवार का एक एक बंदा इस बात के लिए परेशान था कि और भी नहीं तो इनको विटामिन सी तो खिला दें, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उन्होंने अपना उस उम्र में भी इतना टाइट मुंह बंद रखा कि उसमें पानी डालना भी मुश्किल हो जाता था। 5 दिन वो हिली नहीं, ना कुछ लिया। 8वें दिन उनका कोरोना नेगेटिव था, 88 की एज में। तो पंचकर्म भी इसमें बहुत सहायक है। हमें पहले क्यूर पे ध्यान देना है। हमें हो ही ना बीमारी, हमें उस पर काम करना है ना। हम करें कि उस पर काम कि हमें बीमारी हो, तो जो हमारे पास वो स्टाइल है रहने का, तो हम बीमारी ना होने दें अपने आप को। क्योंकि आजकल हम जो खा रहे हैं, आधे से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। सब्जियां भी हम कटी हुई बाजार से लाना चाहते हैं, बोले उसने काट के दे दी तो तब हम अचार, आम काट के दे दिया तो अचार बनेगा। क्योंकि हम, या बिस्किट्स को तो हम ऐसा समझते हैं कुछ है ही नहीं, जबकि उसका अर्थ ये विष कूट कूट के जिसमें भरा हो वो बिस्किट है। तो समझने बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम फ्रेश फूड नहीं खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं वो केमिकल वाला खा रहे हैं। इतना फ्रेश खाने के बाद भी हम बीमार हो सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस्ड हम लोग जो है केमिकल वाला फूड खा रहे हैं। हाँ जी, ऑयल, बिल्कुल। अभी मेरी कहीं चर्चा हो रही थी तो मैं घी पे बात कर रहे थे वो लोग, तो उन्होंने कहा कि गाय का घी तो शुद्ध है, कृष्ण ने भी प्रमोट किया है। मैंने कहा जी बिल्कुल, क्या कृष्ण की तरह आप गाय को चराने ले जाएंगे? पहले कृष्ण की तरह गाय को चराने ले जाओ, फिर गाय का दूध, घी, माखन जो खाना है वो खाओ, क्योंकि आप उतना फिजिकल वर्क कर चुके कि आप उसे पचा पाएंगे। हम बैठ के खा रहे हैं वो सब। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे रोज आता है, ये खाओ ये हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा, ये खाओ मिराकल हो जाएगा, ये खाओ मिराकल हो जाएगा। ये कोई नहीं बताता कि इसको पचाओ, पहले खाओ, बीमार हो जाओ, बस। उनका, मुझे ये लगता है यही उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि जो भोजन है वो ऑर्गेनिक, जैसे आजकल चल रहा है, वापस अपने गाँव की तरफ मुड़े हम, थोड़ा थोड़ा वहाँ खेती करें, ऑर्गेनिक फूड लेके आएं, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, पड़ोसियों को खिलाएं। सच में मैं तो यही कर रही हूँ। और अपने जैसा उन्होंने जिक्र किया कि शकुंताश्रम, उसमें हमने सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल पर ही जोर दिया है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहीं उगाएं। फिर जैसा चर्चा चल रही थी, प्राकृतिक चिकित्सा, चौथा कदम। प्राकृतिक चिकित्सा भी हजारों साल पहले एक हिंदुस्तान का ही विज्ञान था, ये भारतीय ही विज्ञान है, जो लौट के जर्मन और ऑस्ट्रिया से हमारे पास आया। क्यों आया? क्यों जाने देते हैं हम किस दौड़ में लग जाते हैं? अभी एक सज्जन हमारे पास थे, उनसे हम चर्चा कर रहे थे। हमने कहा भाई आप हेल्थ का ध्यान रखें, आपको दोबारा ना आश्रम में आना पड़े। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि किसी भी डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े, आप इतने स्वस्थ रहें। बोले पैसा ना कमाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, और पैसा तो कमाते ही इसलिए हैं कि आगे चल के फिर हेल्थ रखनी है। मैंने कहा ऐसा पैसे का क्या फ़ायदा जो बाद में मेडिकल में देना पड़े। हमारे यहाँ तो शब्द ही है, हेल्थ इज़ वेल्थ, पहला शब्द है। पहला सुख निरोगी का आया, दूसरे नंबर पे आया है घर में हो माया, दूजा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख तो हमें पहले सुख पे ध्यान दे लेना चाहिए। हम लगे हुए हैं दूजे सुख पे। दूजे सुख को तभी भोग पाएंगे जब हम
पहला सुख अपनाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा को अगर मैं कहूँ तो इसमें भी मैं महात्मा गांधी को श्रेय जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस पे बहुत काम किया अपने जीवन में, पूरा उन्होंने वही अपनाया। तो अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ भी चलें तो पांचों तत्वों का वहाँ भी समागम वही दिखता है। मिट्टी, जल, पानी, उपवास, इसी से वो लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और धूप, जिसे आज हम बिल्कुल ही ऐसा समझते हैं कि मैं अपने यहाँ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ आपको आप सन बाथ में बैठना है, सन बाथ लेना है, तो हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा लोग कहते हैं काले हो जाएंगे। हम है ही कौन से गोरे जिसे हमें काले होने की चिंता है? हम गिने ही नहीं जाते गोरों में, उसके बाद हमें काले होने की चिंता है। तो एक ये भी बड़ी परेशानी है। हमें पांचों तत्वों को बैलेंस करना, उपवास इसमें बहुत बड़ा सहायक है। उपवास कई तरह से होता है। एक उपवास हो गया कि आज मुझे इतने घंटे मौन रखना है। मौन, धीरे धीरे मौन में फोन भी नहीं। फोन तो हमने ऐसे समझ लिया है कि हम ही हैं। सच में हमारी प्रतिकृति बन गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो हमारे लिए एक आफत है। और इन पांचों तत्वों को बैलेंस सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद और योग में ही किया जा सकता है। एक सबसे बड़ी चीज़ और बची, वो है नाद, संगीत। हमारे शरीर में अबव 70% जल है। एक कटोरे में पानी यहाँ रख दो, संगीत चला दो तो हिलने लगेगा। तो क्या हुआ कि उस जल में इतनी जल्दी, कहा जाता है ना कि जहाँ जल रखा जाएगा वहाँ की वाइब्रेशन उसमें आ जाएंगी। तो बैठो, हम कहते हैं ना कि अगर हम कहीं भी बैठे हैं तो हमारे पे क्या असर पड़ा अगर हम नहीं लेंगे तो? हमने सुना ही नहीं। किसी भी संगत में बैठ जाए हमने तो नहीं लेना उसका, लेकिन वो हमारे अंदर का जो 70% अबव 70% जल है वो तरंगित होगा ही होगा। हमारे को उस संगति की प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए हमारे यहाँ उस पर इतना ध्यान दिया गया है। आप अगर इस चीज़ को नोटिस करें कि गंगा का जल क्यों पवित्र है। मैं बचपन से कहती आई हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, अरे नहीं नहीं सर वो चूने वूने की उससे आती होगी, खाद गंधक वंधक की माइन से निकल के आती होगी कहीं से, इसलिए उसका जल पवित्र है, इसलिए वो ख़राब नहीं होता। लेकिन उसके पीछे एक बड़ा ही विज्ञान है, बड़ा ही, चूँकि सबसे ज़्यादा गंगा के किनारे तप हुए हैं और हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा सन्यासी तपस्वी गंगा के किनारे हैं। उनके वाइब्रेशंस, वो जल तो तुरंत वाइब्रेशन लेता है। जैसे ज्वार भाटा, चांद, इतनी दूर चांद बैठा है और वो समुद्र में ज्वार भाटा ले आता है। जल इतना बड़ा, इतना इफेक्ट होता है। तो हमारे शरीर में कितना इफेक्ट होता होगा जल। और सांस, जो नाद है, जो संगीत है, संगीत का एक बहुत बड़ा रोल है जिसका हम कह ही नहीं सकते कि कितना बड़ा रोल है हमारे जीवन में। कई बार देखा होगा कि आपका मूड खराब है, मेरा मूड खराब है, अपनी पसंद के 10-20 गाने सुने, आधा घंटा हा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो गए। क्या किया? उस संगीत ने काम किया। करके देखिए आप अपनी पसंद के गाने, जबकि होता क्या है, डीजे चलाएंगे बड़ी तेज आवाज में और उसमें कुछ भी गाने चला के अपना नाचना कूदना शुरू कर देंगे। वो कुछ नहीं है, वो है हमें अपनी ही आवाज को दबा देने की प्रक्रिया, जिसे हम सुनना नहीं चाहते और जो बार बार उठ रही है, जो नई जनरेशन आज सुनने की कोशिश कर रही है, जिससे मैंने बात शुरू की। तो अगर हम उस शोर को दबा देते हैं तो हमारा उस आवाज, जो संगीत है, उस संगीत और उस शांति के बीच में जो एक ठहराव है, एक अलग खामोशी को, एक अलग आवाज को सुनना ही संगीत है। इतने साइंस ने, इतने विज्ञान ने फ्रीक्वेंसीज पकड़ ली हैं कि इस फ्रीक्वेंसी पे ये इफेक्ट होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे ये इफेक्ट होगा, इस फ्रीक्वेंसी पे ये इफेक्ट होगा। ये संगीत काम कर रहा है, जिसे हमारे यहाँ नाद शब्द दिया गया है।
स्वर की साधना ही ईश्वर की साधना है। स्वर की साधना ही ईश्वर की साधना है। और स्वर की साधना क्या है? हमारे यहाँ स्वर अगर देखें तो 2 स्वर बताए गए हैं, सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र। तो अब क्या है, हमने वो साध लिए। अब साधने के बाद क्या हुआ? सबसे बड़ा है अपनी सांसों का संगीत। अगर कोई खामोशी से अपने सांसों के संगीत को सुन ले तो वो जो वो उसमें सुनाई दे जाएगा। सा रे सब सुनाई दे जाएगा, 7 स्वर सुनाई दे जाएंगे। तो करना क्या है? जो हमने सांस ली और जो हमने सांस छोड़ी उसके बीच कुछ पल का ठहराव है। उस ठहराव को पकड़ लेना ही ध्यान, समाधि और साधना है। वही स्वर साधना है। तो हम इसके जरिए भी अपने आप को संभाल सकते हैं। और अब मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि योग से हमें क्या मिलता है, अगर हम समझ सके हो तो हमें एक डायरेक्शन मिलता है। आयुर्वेद से नरिशमेंट मिलता है और नेचुरोपैथी से अडेप्टेबिलिटी, हम रिजिड नहीं रहते। और संगीत से कनेक्शन। हो गया जीवन पूरा। और आज अपनी बात को मैं यहीं विराम देते हुए सिर्फ एक ही बात और कहना चाहूँगी, शरीर माघम खलु धर्म साधनम। मतलब शरीर का धर्म है, पहला शरीर जो साधन है उसका जो धर्म है कि योग के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत बनाओ और अपने कर्तव्यों को पालन करो, क्योंकि शरीर ही मंदिर है। इस मंदिर का ध्यान रखो। इसके अंदर बैठी हुई आत्मा ही भगवान है, मन नहीं। मन तो डिस्ट्रैक्शन देगा ही देगा। तो हम अगर किसी को इस बारे में और कोई क्वेश्चन हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, पूछ सकते हैं। यदि मेरी समझ में मेरी इतनी काबिलियत हुई तो मैं उत्तर अवश्य दूंगी। और अपनी वाणी को मैं आज यहीं विराम दूंगी। धन्यवाद। थैंक यू कविता जी। पूछना चाह रहे हैं, माइक नीचे। मैडम, आपके जो शकुंत आश्रम है उसमें ये सब समन्वय और बैलेंस कैसे होता है, वो ज़रा बताएंगे? और कितने दिन का प्रोग्राम रहता है और क्या क्या ट्रीटमेंट्स होती है? हम जानना चाहेंगे कि आपके शकुंत आश्रम में क्या क्या प्रोग्राम होता है, क्या सेशन होते हैं, कितने दिन का वहाँ स्थायी निवास होता है और क्या क्या ट्रीटमेंट होती है वहाँ, जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और आत्मचिंतन करके हैप्पी रह सकें। सबसे पहले तो वहाँ समर्पण के साथ आइए। सबसे पहली शर्त है कि समर्पण के साथ आएं। कहीं भी शकुंत आश्रम ज़रूरी नहीं है कि आप शकुंत आश्रम जाएं। ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ भी आपको विश्वास बैठता हो वहाँ जाएं। मैं अपने आप को प्रमोट करने नहीं आई हूँ। मेरी इच्छा है, मेरे यहाँ से कोई आदमी सही भी होके जाता है ना डॉक्टर साहब, तो मैं उसको कहती हूँ कि बस अब आप दोबारा कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े, इतने स्वस्थ रहें। और ऐसे जितनी भी डॉक्टर्स और सेंटर्स हैं बंद हो जाएं, इतना स्वस्थ रहे ये विश्व। तो हमारे यहाँ जो समन्वय है वो इस तरह से है कि जब आदमी आता है तो उसका नाड़ी चेकअप होता है, डॉक्टर के हिसाब से ही सारा ट्रीटमेंट भोजन तय होता है। साथ में उसको कम से कम पूरे दिन में 1.5 से 2 घंटा योग होता है। मतलब 1.5 से 2 घंटा योग हो जाना अपने आप में बहुत है। फिर 1-1.5 घंटा या 2 घंटा शारीरिक क्षमता के हिसाब से, रोगों के हिसाब से उनको एक BKS अयंगर की थेरेपी मिलती है, वो भी योग है। भोजन वही बनता है, आधे से ज़्यादा वही उगता है, तो ओरिजिनल, सीजनल और संतुलित है, मतलब ऑर्गेनिक भी है। उसके साथ साथ मेडिटेशन, संगीत साधना और मौन, और फिर उसके बाद बहुत सारी इस तरह की होलिस्टिक एक्टिविटीज़ रहती हैं जिसे हम आदमी को बाद में उसको समझ में आता है कि कुछ अंदर हुआ। वास्तव में ऐसा होता है। और जहाँ तक इस बात की है कि हमने कैटेगरी तो ऐसे भी रखी हुई है कि आप 3 दिन के लिए भी आइए, वो तो एक कमर्शियल एंगल हो गया कि आदमी आए कम से कम, लेकिन कम से कम 7 दिन, 5 से 7 दिन तो आप लेके आइए। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, जैसे आजकल के नए बच्चे हैं वो आजकल
जो छुट्टियां प्लान करते हैं वो सारी हेल्थ से कनेक्टेड होती हैं। उनकी पार्टीज़ ही हेल्थ से कनेक्टेड होने लगी हैं। मुझे पता नहीं सूरत में ऐसा है कि नहीं, लेकिन है ना। दुबई में तो मैं बहुत देखती हूँ, मेरे बच्चे तीनों दुबई में ही रहते हैं, तो उनके यहाँ पार्टीज प्लान होती हैं तो पूरा सिस्टम, पूरा घर का पूरा बदल जाता है। कोल्ड प्लंज, हॉट वाटर बैग, मड बाथ, सारी चीज़ें वहाँ लग जाती हैं। जो भोजन होता है वो भी टोटल सात्विक होता है, म्यूज़िक चल रहा होता है बिल्कुल। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उसमें आप एक बार आप आए हैं, नहीं आपसे बात हुई है शायद मेरी फ़ोन पे, तो एक बार आके आप विजिट तो कीजिए। तो डॉक्टर भी हमारे केरला के हैं। हाँ जी, आप पूछिए। I'm so proud to see you again here at Surat. आप Chamber of Commerce has invited before to visit your ashrams, and the day you had given your personal life, how you established your factory and managing that factory, nearly 800 workers working for 24 hours, and what the difficulties you have faced those days. That is what most amazing to me, and what the opportunity you had given that day to express yourselves, how you became a wealthy. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप मेरे को आगे के लिए भी आश्वस्त कर रहे हैं कि आप मेरे साथ हैं, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। आज के इन सब के लेक्चर के साथ कोई प्रश्न है तो वो पूछिए। आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए मैं स्वीकार करती हूँ। आई एम गिविंग अ थैंक्स कि जो मैंने देखा मेरी लाइफ में आपके वहाँ, उसकी फोटोग्राफ है लेकिन मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, बट एंजॉय लाइक एज अ हेवन। और कोई सवाल किसी का हो तो बहुत अच्छा। कहाँ पे है ये आश्रम? अब वो शकुंत आश्रम कोसंबा, इतना ही पहुंच जाएंगे आप। यहाँ से मुश्किल से आपको 1 घंटा लगता है। कोसंबा रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, हाँ वो सेशन के बाद दे दें। चलिए, अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर मंसाली को, जो कंक्लूडिंग रिमार्क करेंगे, और उसके बाद डॉक्टर निपेश, जो नेक्स्ट मीटिंग अनाउंसमेंट। एक सवाल मैम, एक क्वेश्चन था। एक तो पहले आपने जो पतंजलि योग सूत्र का पूछा, तो महर्षि पतंजलि ने वो लिखा नहीं था। नहीं, महर्षि पतंजलि का नाम नहीं लिया मैंने, भगवत गीता लिया मैंने पहली बार। नहीं, योग सूत्र की बात कर रहा हूँ। हाँ, योग तो उन्होंने खाली वो सूत्रबद्ध किया। हाँ, मैंने वही बोला था। और मुझे आपको एक प्रश्न ये पूछना था कि जो आसन योगासन है, ठीक है, तो वो एक ट्रेडिशनल मैथोडोलॉजी हो गई, और एक कंटेम्प्ररी जो आज की जेन जी आप बोल रहे थे, तो वो जिम जाना पसंद करते हैं या स्विमिंग जाना पसंद करते हैं, साइकिलिंग करना पसंद करते हैं। तो क्या ओपिनियन है आपका कि कैन इट बी एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल योगा मेथड्स? उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी अगर वो किसी स्पोर्ट्स में है, चाहे वो साइकिलिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्विमिंग कर रहे हैं। और जहाँ तक रही जिम की बात, तो मैं बता दूँ, जो नए बच्चे हैं वो जिम के लिए भी बहुत अवेयर हो गए हैं, जिम में उन्हें क्या करना है। और जिम के जो ट्रेनर्स हैं, मैं इंडिया के लिए तो मैं ख़ास तौर से कहूँगी कि इंडिया में अभी हमारी वो अवेयरनेस नहीं आई है, लेकिन बाहर जैसा मैं देख रही हूँ, जिम के जो ट्रेनर्स हैं उनका जितना काम है वो बेसिक्स, मतलब पूरा वो योगा से ही उठाया हुआ है। तो इसलिए इतना डरने वाली बात नहीं है। और हमें लगता है कि ये भी ट्रांजिशन, मैंने कहा शुरू में कि ये ट्रांजिशन है, जब वो उधर आ गए धीरे धीरे इधर भी आएंगे। एक उम्मीद हमें रखनी चाहिए, जिनसे हमें बिल्कुल ना उम्मीद हो गए थे जिस पीढ़ी से, वो पीढ़ी आज जिस तरह से बदल रही है, वो एक बहुत बड़ी खूबसूरत चीज़ है, और उनको हमें बल्कि उनका साथ देना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच मैडम। कविता जी को मैंने पहले भी सुना है, एंड लिटरली बड़े सरल शब्दों में, एक साधारण सी भाषा में वो अपने स्पीच को डिलीवर करती है। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द मैडम। थैंक यू सो मच। कंक्लूडिंग रिमार्क में मैं ये कहना चाहूँगी, अभी हमने इस 45 मिनट में क्या टेक अवे लिया। पहला टेक अवे हमारा होगा आहार। जैसा कि हमें बताया गया, आहार किस तरह से लेना है, लाइट फूड लेना है, हैवी फूड नहीं लेना है।
दूसरा है उपवास। हमारा ये सबसे मेन टेक अवे होगा, उपवास। वीक में एक दिन उपवास ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए उस पूरा दिन केवल फल लें। कोई एक तरह का फल हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो बाउल ऑफ फल लिया जाए, बाकी कोई भी ग्रेन्स ना लिया जाए। ये हुआ हमारा वैशाली जी, एक ही बार फल लिया जाए। हाँ, एक ही बार फल लिया जाए तो बहुत अच्छा है। ये तो मुझे लोग आके बोलेंगे मैडम एक बार आपने फल लेने बोला था, बीपी डाउन हो गया है। सो डिस्क्लेमर के साथ यू कैन टेक फ्रूट्स, कोशिश करें एक बार आप फल लें और ईश्वर की आराधना ज़्यादा करें। दूसरा है योग। फ्रेंड्स, योग वेट लॉस के लिए न लेते हुए योग अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपनाइए। हमारे जेंजीज जिम कर रहे हैं, मैं कई जिम पर विजिट करी हूँ जहाँ पर मैंने देखा कि पीटी भी अब कार्डियो ज़्यादा करवाते हैं वेट ट्रेनिंग से। वो है फ्लेक्सिबिलिटी। हम अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार अपने आप में आई गेस संपूर्ण योग है जिसमें बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मेंटेन हो। तीसरा है लेस मेडिसिन। कोशिश कीजिए छोटी छोटी तकलीफ के लिए मेडिसिन न ली जाए। खासकर हमारे सुशील भाई, थोड़ा भी बैक पेन होता है तो वो कॉम्बीफ्लेम लेते हैं। इस आदत को बंद करें। छोटे छोटे चीज़ों के लिए कोशिश करें, या तो योग करें, बॉडी स्ट्रेच करें। और एक मेरे किसी मित्र ने जिक्र किया था कि आयुर्वेद बहुत देर बाद असर करता है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा आपको बोलना चाहूँगी। एज अ साइंटिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, आयुर्वेद पहले जो आयुर्वेद की दवाएं बनती थी वो हमारी रूट्स और स्टेम से बनती थी, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी अब इतनी कम हो चुकी है कि उससे बनी हुई मेडिसिन में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अब नैनो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी आई है। हांगकांग से मैंने आज से 14 साल पहले नैनो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी में पीएचडी करा। तो अब जो आयुर्वेद की मेडिसिन बनाई जाती हैं उसमें नैनो एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको टॉन्सिलाइटिस है तो नैनो एक्सट्रैक्शन से निपेश भाई और हमने एक ऐसी मेडिसिन बनाई है, आप उसे 3 दिन लीजिए तो एटलीस्ट टॉन्सिलाइटिन के ऑपरेशन से आप बच जाएंगे। इससे जल्दी तो और हम नहीं दे सकते जड़ से। तो जड़ से ख़त्म करने के लिए कम दिनों में जो रिटर्न हम दे रहे हैं, आयुष मिनिस्ट्री दे रही है, वो है नैनो एक्सट्रैक्शन से बने हुए प्रोडक्ट्स। सो आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं कोशिश कीजिए उस पर एक बार पढ़ लीजिए, भस्म ना हो, लिड ना हो। जब जितना कम लिड और भस्म होगा उतनी आपको जो रिकवरी है तेज़ी से जल्द मिलेगी। सो ये थे हमारे टेक अवे। इसमें मैं कविता जी से बहुत सहमत हूँ। गीता के साथ उन्होंने रिलेट किया था हमारे शरीर को, वैसे ही मैं एक छोटा सा किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। रामायण हम सब ने पढ़ी है या सुनी है या देखी है। रामायण में एक जिक्र है कविता जी, हनुमान जी पहाड़ लेकर आए थे संजीवनी का। सुने, पहाड़ लेकर संजीवनी। अब हनुमान जी तो इतने ज्ञानी थे, उन्हें नहीं पता चलता संजीवनी कौन सा पौधा है, पता चलता है उन्हें, पर वो पहाड़ लेके क्यों आए थे? तो हमारा साइंस जी सर, सब वनस्पति पे जो जल रही थी, हाँ, वो दिखने में बहुत आकर्षक थी और एकदम चमक रही थी। साइंटिफिक रीज़न क्या है? एज अ साइंस आज से 14 साल पहले हमने इस संजीवनी पर रिसर्च की थी DRDO के साथ मिलके। मेरे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रह्मा थे, वो अब रहे नहीं सृष्टि पर। सो वो संजीवनी लाने का हनुमान जी का साइंटिफिक रीज़न मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। चूँकि वो जो प्लांट होता है संजीवनी का, वो 200 फीट नीचे पहाड़ में होता है। अगर उसकी बैरी आपने तोड़ी, अलबत्ता उसकी बैरी तोड़ी नहीं जा सकती, बड़े बड़े कांटे होते हैं तो टैप करके निकाला जाता है। और अगर वो बैरी लेके हनुमान जी उड़ते तो वो 6 घंटे में बैरी सीड बनने लगती है, यानी ड्राई होने लगती है। इसीलिए हनुमान जी पहाड़ लेकर आए, पहाड़ लाके उन्होंने रखा। सुषैण वैद्य ने उसको मसला, पानी के साथ हर 1 घंटे में लक्ष्मण जी के मुंह में वो दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित क्यों हुए? तीर लगा था जब वो मनुष्य योनि में, तीर मतलब टॉक्सिक बॉडी में गया। बहुत समय तक पैदल चढ़ने के कारण उनकी सारी इम्यूनिटी लॉस हो गई थी, विटामिन लॉस थे।
संजीवनी जो नाम दिया गया था वो राम जी ने इस बेरी को ये नाम दिया गया था क्योंकि इसमें जीवन को वापस से रिजनरेट करने की क्षमता होती है। अलबत्ता इस हर्ब का नाम साइंटिफिकली है सी बकथॉर्न। कई इंस्टा पे आप सी बकथॉर्न देख रहे होंगे। मैं आज से 14 साल पहले इसकी रिसर्च हम लोगों ने करी है। वो संजीवनी आज खोज की गई, आज हम लोग ले रहे हैं, लेकिन यूएस में आज से 22 साल पहले से जा रहा है सी बकथॉर्न। तो मेरा ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था कि आज भी आयुर्वेद हर्ब्स हमारे नेचर में इतनी क्षमता है कि बगैर मेडिसिन से आप अपने शरीरों को स्वस्थ कर सकें, शरीर मुक्त रह सके। विल कंप्लीट द सेशन, देन विल हैव अ टॉक। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी का, स्पेशली कविता जी का, मेरी टीम का, कि हम लोगों ने आज मुझे कोशिश है कि आज हमने जो आपके लिए यहाँ पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा उसमें आपको बहुत आनंद आया होगा। थैंक यू सो मच। આપ સૌ અત્યારે સ્પેશિયલ ટાઈમ કાઢીને પધાર્યા છો। SGCCI આયુષ કમિટીના કો ચેરમેન એઝ એ ડૉક્ટર નિપેશ પટેલ, માય સેલ્ફ વૈદ્યરાજ, પ્રાઉડ ઓફ માય સેલ્ફ, આપ સૌના હાર્દિક આભારી છીએ। અને આવી રીતે આપ જે ચેમ્બરનું જે આટલા 84-85 વર્ષમાં પહેલી વખત આયુષ કમિટીનું ગઠન થયું છે ને અમારો ધ્યેય છે તમને બધાને હેલ્ધી, ફિટ, યંગ ફોર એવર રાખવાનો। પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ અને હેલ્થ અવેરનેસ માટે અમે લોકો ઘણા બધા પ્રોગ્રામ લાવી રહ્યા છીએ। નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ 24મી ફેબ્રુઆરીએ આવશે, ગ્રુપમાં આવી જશે અને તમને લોકોને ઇન્ફોર્મ કરવામાં બી આવશે, એટલે ચોક્કસ એટેન્ડ કરશો, એ થોડું સરપ્રાઇઝ રાખીએ। બીજું કે ચેમ્બરના પ્રમુખ શ્રી નિખિલભાઈ મદ્રાસી, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ અશોકભાઈ જીરાવાલા, ટ્રેઝરર મિતેશભાઈ મોદી અને IPP એ બધાના અમે આભારી છીએ। આયુષ કમિટીના ચેરપર્સન ડૉક્ટર મનશાલીજી ખાસ ઇનિશિયેટ લઈને આ વખતે પહેલી વખત આયુષના પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કર્યા છે અને આજના ખાસ તો ગેસ્ટ સ્પીકર કવિતા ગુપ્તાજી કે જે સ્પેશિયલ ટાઈમ કાઢીને આવ્યા છે ને આપણને આયુર્વેદ, યોગ, નેચરોપેથી, હોલિસ્ટિક હિલિંગ ઉપર આપણને કંઈક નવું પીરસવા માટે એમણે પ્રયત્ન કર્યો છે। મેસેજ એવો લઈને જાઓ કે આપણે બીમારીની લાઈફમાં જરૂર છે જ નહીં, બીમારીની કોઈ જરૂર નથી। આપણે હેલ્ધી, હેપી રહેવા માટે, ખુશ રહેવા માટે જીવનમાં બીમારીની કોઈ આવશ્યકતા નથી। આપણી આળસ, બેદરકારી અને અજ્ઞાનતાથી જ આ બીમારીઓ આવે છે અને એના પ્રી સિમ્ટમ્સ હોય છે। આપણે પહેલેથી જો કાળજી રાખીએ, પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ ઉપર ફોકસ કરીએ, આયુર્વેદ, યોગ અને આપણી જે સ્પિરિચ્યુઅલિટી છે એને અપનાવીએ, સિસ્ટમને સમજીએ, ઘણું બધું ભર્યું છે આપણને। શું પાશ્ચાત્ય વાંદરીકરણમાં આપણે અટવાઈ ગયા છે, બાકી આપણા જ્ઞાનને જો અપનાવી લઈએ, વિશ્વાસ રાખીએ, જેમ સાઉથ ઇન્ડિયા, કેરલામાં એ લોકોને ટ્રસ્ટ છે પોતાની કલ્ચર ઉપર, ટ્રેડિશન ઉપર, એટલે એ લોકો આગળ છે આપણા કરતાં। એ લોકો સીધું પહેલાં આયુર્વેદમાં જાય છે, આપણે અહીંયા છેલ્લે આયુર્વેદમાં આવીએ છીએ। એટલે એક ક્વેશ્ચન, એટલે બીમારી મટતા વાર લાગે, બીમારી આખા બોડીમાં ફેલાઈ જાય છે, ક્રોનિક થઈ જાય છે, એટલે વાર લાગે ને। અત્યારે સાયન્સ, ટેકનોલોજી અને ગવર્મેન્ટનો સપોર્ટ, અત્યારની જે ગવર્મેન્ટ છે એટલું બધું છે કે તમને ઇન્સ્ટન્ટ અમારી પાસે એવા મશીન બી આવી ગયા છે આયુર્વેદમાં, પંચકર્મમાં, કે તમને આમ સેકન્ડ્સમાં તમને દુખાવો ઓછો કરી શકીએ અને ઘણી બધી બીમારીઓ ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ આપી શકે, લોંગ લાસ્ટિંગ બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે વિધાઉટ એની સાઇડ ઇફેક્ટ। ને હવે તો મેડિક્લેમ પણ પાસ થાય છે આયુર્વેદમાં, એટલે ઘણું બધું એડવાન્સ આવી ગયું છે। પણ આપણે પહેલાં આયુર્વેદમાં આવીએ અને પછી જરૂર પડે તો ઇમરજન્સી હોય તો એલોપેથીમાં જઈએ, તો કોઈ દિવસ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય। આપણે બધી રૂટીન વાત છે, પણ ઘણા એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ડિસીઝ હોય છે, જેમ કે ડીએનએના પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ બાળકને બાય બર્થ, અને જેનેટિક ડિસીઝ હોય એ ક્યોરેબલ નથી, તો એમાં કંઈક તમારું આ વિજ્ઞાન કંઈક કામ કરે? देखें, जेनेटिकली डिसऑर्डर, बैठिए प्लीज़। जेनेटिकल डिसऑर्डर के अंदर हम लोगों को पहले हिस्ट्री लेनी होती है कि जेनेटिकल वो कौन सी पीढ़ी में आया, उस पीढ़ी के अंदर अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो कौन से पार्ट पे, जैसे बोन्स डेंसिटी पे हम लेते हैं, बोन मैरो का एक समझते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसा आपने अभी सुना होगा कि पहले स्टेम सेल्स आते थे, तो अभी वो फिश की जगह एप्पल्स के हम बनाने जा रहे हैं।
कई ऐसी जेनेटिकल डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स हैं जिसे क्योर हमने कुछ हद तक किया है आयुर्वेद में, योग में, लेकिन हाँ ये बात भी सही है कि जेनेटिकल डिसऑर्डर हर एक डिजीज़ क्योरेबल नहीं होती है। देयर इज़ अ डिपेंडेंसी ऑन द डिजीज़। तो कई बार पेशेंट टू पेशेंट भी वेरी करता है कि कौन सी डेंसिटी, कौन सा ऑर्गन और कौन से बॉडी पार्ट में किस जेनेटिकल पर इफ़ेक्ट कर रहा है, उसका प्री एंड पोस्ट सर्कमस्टेंस क्या है। सो इट्स स्टिल चैलेंज अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि डाइजी है 50-50। अगर एलोपैथ भी नहीं कर पाया जेनेटिकल डिजीज़ को क्योर, तो आयुर्वेद तो अभी फिर भी धीरे धीरे चल रहा है। हम तो आयुर्वेद के पास आते हैं और पूछते हैं गारंटी क्या है डायबिटीज़ ठीक होगा। हाँ फोन है ना, रोज डायबिटीज़ की मेडिसिन खाएंगे, लेकिन आयुर्वेद हम आयुर्वेद वाले बैठे हैं हमारे पास आके बोलेंगे गारंटी क्या है आप डायबिटीज़ ठीक कर देंगे, पहले गारंटी दीजिए। मेरे भाई गारंटी अगर किसी और मेडिसिन में होती तो आप मेरे पास क्यों आते। और है क्या डायबिटीज़, क्या है डायबिटीज़, उसे आप पहले अच्छे से स्टडी कर लीजिए। जब आप उसकी स्टडी कर लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा बॉडी के किस ऑर्गन में क्या रिसेप्टर किस तरह से टॉक्सिक होते हैं। अगर उसे डिटॉक्स कर लिया तो ख़त्म हो गई। डायबिटीज़ क्या, इट्स अ प्रोसेस। इंसुलिन जनरेट करने की एक प्रोसेस है हमारे शरीर की। अगर वो प्रोसेस खुद बॉडी जनरेट करता है तो हमें ऊपर से इंसुलिन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सा साइंस है, हमें सिर्फ साइंस ही समझना है। हम हमारी बॉडी को तो समझते ही नहीं ना, क्योंकि इतना बड़ा ढगला भर के हम लेकर आते हैं रिपोर्ट्स। तो एटलीस्ट आप एक मैकेनिज्म समझ लीजिए शरीर क्या है। मैंने जैसे कि सबसे शुरू में मैंने एक स्टोरी कही थी डस्टबिन की, कि डस्टबिन, आप यही समझिए आपका शरीर एक डस्टबिन ही है। आपको उसको क्लीन करना है समय समय पर। अगर आप ये करने में सक्षम रहे, कामयाब रहे, तो यकीन मानिए डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, हेयर फॉल, स्किन, फलाना ढिमकाना, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी बकायदा बड़े प्यार से क्योर होगी। अभी मैं आपको बताऊं, सोराइसिस करके एक डिजीज़ है, क्यूरेबल नहीं है, नॉन क्यूरेबल है, और वो हम लोगों ने क्योर किया है। अब वो लेकिन हमने और वो भी उनके पास कम से कम 25-30 ईयर्स का था, और उनको बुरी कंडीशन थी बहुत, और वो भी तब की है कि जब वो खुद, हमारे जो पेशेंट हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, ना वो खाने में कोऑपरेट कर रहे हैं और ना वो वहाँ रहने में कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर भी हमने उनको ऑलमोस्ट अभी तक 90% तक ले आए हैं। अब वो रिवर्स नहीं होगी, कम से कम उस कंडीशन तक ले आए हैं। तो अब ये लेकिन हमने पहले ही कह दिया कि देखो हमारे पास गारंटी नहीं है। आप 50 साल से एक बीमारी को, 30 साल से एक बीमारी को ढो रहे हैं, और यहाँ आप एक दिन में गारंटी मांग रहे हैं। पहले तो अपने आप से गारंटी लीजिए। सीधी सी बात है कि भाई आप समर्पण हैं आप में। पहले ही मैंने शब्द कहा कि समर्पण बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, कोई काम के लिए भी समर्पण ज़रूरी है। तो है, ऐसा नहीं है जैसा अभी मनशाली जी कह रही हैं, वो बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रही हैं, क्योंकि वो उस तरह से विज्ञान में काम कर रही हैं। मैं वैज्ञानिक तौर पे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं जो देख रही हूँ ज़मीन पे देख रही हूँ कि लोगों को हम किस तरह से राहत दे रहे हैं। वो अपना जो जिन्होंने जिस तरह से विज्ञान को वो समझ रही हैं, वो हमारे इतने काम का है कि हम उस चीज़ को समझ के अपने इन दरवाज़ों को, इन खिड़कियों को खोल सकते हैं। बिल्कुल, और उस तभी हम उधर आगे बढ़ेंगे जब हमारे खिड़की दरवाजे खुल जाएंगे, उस विज्ञान की खिड़की दिख जाएगी, तब हमें भी यकीन विश्वास आएगा। तो हमें पहले वो सारी चीज़ें समझनी चाहिए। और रही बात इसकी कि हमारा जो ये अभी मनशाली जी ने कहा ये डस्टबिन है, अगर हम आज से ही ठान लें कि ये डस्टबिन नहीं है तो आज के बाद ये डस्टबिन नहीं रहेगा। और आज का मनशाली जी का जो ये प्रयास है, मेरे ख्याल से शायद है ही इसलिए कि हम अपने इस डस्टबिन को आज के बाद खाली कर दें और कभी भी दोबारा भरने ना दें। मनशाली जी, आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली છે ને ગેરંટી શબ્દ મેડિકલ સાયન્સમાં અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ ક્યાંય નથી, વ્યવહારમાં પણ ગેરંટી શબ્દ નીકળી ગયો છે। એટલે આપણું શરીર, આપણે બીમાર પડીએ તો આપણો જ ફોલ્ટ પહેલાં ગણવાનો, અને ડૉક્ટર હંમેશા વૈદ્ય સારું કરવા પ્રયત્ન કરતા હોઈએ। આપણે સપોર્ટ આપીએ તો જલ્દીથી રિકવરી થાય, અને ફરીથી બીમાર ન થવાની પણ આપણી જ જવાબદારી હોય છે।
એટલે આયુર્વેદમાં શું છે કે તમે પહેલાં આવશો તો વાંધો નહીં આવે, હરીફરીને છેલ્લે આવશો ને તો વાર જ લાગશે. ऑफिशियली ये सेशन अभी क्लोज हो गया है. आप सभी के जल पानी की व्यवस्था बाहर है. उसके बाद भी अगर कोई बैठना चाहे, चर्चा करना चाहे तो हम अभी 10 मिनट यहाँ हैं. आप पूछ सकते हैं.